تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے، ملکیت دو، گیو دا پیپل اونرشپ اوور دی افیئرز آف دا کنٹری، اور یہ ایک ہی صورت میں ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو. اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں، تو یہ مذاق مت کرو خدا را، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے، چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے، ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ، یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اگلی فیز میں جس طرح مروت کو گرفتار کیا ہے، اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے، خدا را اس کو لگائیے گا، ڈس اپیئرڈ پرسن، مسنگ پرسن، تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکے اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے. اور یہ جو اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں نام لکھ دے، اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی، اس کا پوٹینشیل کا، اس کا پوٹینشیل ہے، تو اس میں تو کسی کو بھی آپ اٹھا لو. سو ایسے آرڈر کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں اور اس اختیار کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تدارک یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں، جمہور کو ان کا حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں. اگر آپ واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ظلم اور اس پر جو زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کیونکہ باقی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی باقی 13 جماعتوں نے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے، یہ عوام کے اندر کس بیانی سے، کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اگلا تو میں نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے شعار میں نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کوئی زیادتی کسی کے ساتھ زیادہ لفظ ہے، مگر یہ خود اس نے استعمال کیا تھا خواجہ آصف نے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی. قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے گا، جسے بھی وہ چاہتے ہیں، جسے بھی وہ چاہتے ہیں شفاف طریقے سے ان کو حق دیں، تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا، تو انتقام کا خانہ جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یگانگت اور اس بھائی چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں. لطیف کھوسہ زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، لطیف کھوسہ زندہ باد، لطیف کھوسہ زندہ باد، لطیف کھوسہ زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. ایک پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، لطیف پاکستان کھوسہ زندہ زندہ باد. باد. تھینک یو. تحریک انصاف کے پاس
पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज है, एक तो इमरान खान के केसेस है और दूसरा इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी मौजूदगी यकीनी बनाना है। तो उसके लिए हर्डल्स भी आपके सामने हैं। आपने तो एक केस किया था तो फायरिंग हो गई थी आपके घर के ऊपर और उसका इल्ज़ाम भी जिस पर आया था आपको पता है। तो आपकी अब क्या प्लानिंग होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, और आपको अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने पहले कहा कि वो अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी मौत। मैं एक इस धरती माँ के लिए मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं धरती माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बेवफाई होगी अगर हम जो है अपना जो मसाइल के इदराक के लिए धरती माँ के लिए काम नहीं करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मैंने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह हम फिर इन्हीं अदालतों से तवक्को करते हैं। उन्होंने आइन की हल्फदारी पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मिसिंग पर्सन डिसअपेयर्ड पर्सन किया हुआ है। हम इसका तदारक इंशाअल्लाह अपने उम्मीदवारों को भी हल्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, अपने उम्मीदवारों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हम आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। हमने बस कह दिया कि जो मसला है आपकी सतह के बता दिए, अली ज़फ़र हैं वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, अवैस जो है वो नज़र नहीं आ रहे, इमरान खान जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और इसी तरह से कोई पार्टी का मर्जी हो तो दार भी तो शमूलियत कैसे हम इख्तियार कर रहे हैं? दोनों बातें देखिए, एक तो मैंने किसी को बुलाया नहीं है, ये भी खुद आए हैं दोस्त। दूसरी बात ये है जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मेरी शमूलियत है, ये मेरी शमूलियत है, ये मेरा इस वक्त प्रेरोगेटिव था और वो इमरान खान के लिए है। ये दोस्त अपनी मोहब्बत से आए हैं, अब आइंदा से जो होगा हम इसको करेंगे। जो आपने पहला सवाल किया वो अगर मैं फ्री हूँ, मैंने 50 साल दिए, लेकिन अब मैं इसलिए कोई बात मैं नहीं करना चाहता जो कोई ऐसी मुतसव्वर हो, लेकिन इस वक्त मैं फ्री हो गया ना। जब तक मैं फ्री नहीं था मैंने कोई फैसला नहीं किया था, अब मैं फ्री हो गया ना, सो इसलिए मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। मैं जो कर सकता था मैंने किया है, मैंने मोहब्बतें दी है, मैंने जवानी दी है, मैंने अपनी ज़िंदगी दी है, आप सबके सामने है। लेकिन क्या मैंने उसमें क्या पाया क्या खोया मैं इसमें भी नहीं जाता हूँ, इसलिए कि मैं उन अशख़ास में से नहीं हूँ जो ताल्लुक़ एक दिन भी मेरा किसी से रहा हो मैंने उसका कभी शिकायत नहीं की। थैंक यू। ये बताइएगा कि अब बुकरा मार्च क्या करने जा रही है? लेकिन साहब आप तो पहले भी बुकरा मार्च करते रहे हैं, सिनेरियो में प्रीएम्प्टिव क्वेश्चन, बुकरा मार्च आप क़यादत करेंगे, क्या होगी? वक्त बताएं। देखें अभी ये ज़रा आगे चलते हैं, अगर तो कोई ऐसी नौबत आई कि तहरीक चलाना पड़ी तो यकीनन तहरीक में आपने देखा ही है हम हरावल दस्ता होते हैं, सर हमारे फटते हैं, जेलों में हम जाते हैं, ये कोई ऐसा मसाला नहीं है। लेकिन अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा जिस तरह के केयर टेकर जब आ जाए, जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए तो फिर कोई चीज़ रुकावट नहीं हो सकती है। ये अदालतों से हम यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसी ज़रूरत न पड़े कि तहरीक हमें चलाना पड़े। हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर और स्मूथ इलेक्शंस हो और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वर्कर कन्वेंशन में शेख अब्दुल साहब आ गए हैं, तो क्या इस वक्त वर्कर कन्वेंशन आप करने के लिए जा रहे हैं और आप शेख अब्दुल की तरफ लेके जाएंगे? दूसरी तरफ सर पीटीआई में जो भी शमूलियत इख्तियार करता है या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या जदोकोप में डाल दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है? क्योंकि आपके दो अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुके हैं, एक लिफ्ट ने बंद किया था, दूसरा आपके सामने, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो पहले कह चुका, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बाकी चीज़ें सब अल्लाह के पास होती हैं, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका। सो इसलिए मुझे कोई ऐसा खौफ नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूँ तो जो पार्टी मेरे सपोर्ट करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई, आपने नापसंद किया, आपने कहा ये एक्सरसाइज बंद होनी चाहिए।
अगर इसी किस्म की कोई एक्सरसाइज अब जुडिशरी में होती है, कोई एज रिटायरमेंट की आगे बढ़ाई जाती है मोहतरम जज साहिबान की, या किसी तरीके से फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है जो रिटायरमेंट के करीब हों, उनको आगे किसी तरीके से बढ़ा दिया जाता है, तो क्या आप आईनी तौर पे कैसा देखते हैं? क्या ये अदलिया के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने मिसाल दी है वो मिसाल बनती नहीं है, इसलिए कि एग्जीक्यूटिव किसी अथॉरिटी को एक्सटेंशन देना हुकूमत के बस की बात होती है, लेकिन जुडिशरी में जो है तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल है। अगर उसको आपने बढ़ाना है तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आप भी जानते हैं आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस की अलहदा करवानी पड़ती है। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहाँ से होगी? खाना लग गया। उन्होंने इस वतन की खातिर कोड़े भी खाए रहना, उन्होंने आप भी इस तहरीक का हिस्से रहे। जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया, उस वाक़यात पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, अब आप पीटीआई में आए, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो किस हल्के से लेंगे? लेकिन जहाँ तक पहला ताल्लुक है, वो इमरान खान साहब बार बार कह चुके कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 9 मई का जो है एक हाई पावर्ड जुडिशल जो है कमीशन बनाकर इस चीज़ की तफ्तीश और तस्दीक करे कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेड किस्म की ऐसी जो मूव थी जो शरीफ खानवादे ने करवाई, जिस वजह से कि हमारा 10,000 बंदे को भी जो है अंदर कर दिया गया और हम सारी क़यादत को भी जो है तितर बितर करके पार्टी को ही मुंतशिर करने की एक काविश थी। तो ये एक मुतनाज़ा चीज़ है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बाहर कैफ अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बना दी जाए, इसमें जो है तस्दीक कर दी जाए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने ज़ाहिर है अभी शामिल हुआ हूँ, जो पार्टी कहेगी मैं उस तरह करूँगा। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और किस हल्के। आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 19